मैंने अगेन बचपन से सुना हुआ है और कभी कभी मैं इसको फॉलो भी करती हूँ, एंड जब भी मैं सिर्फ कलर इसको फॉलो करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है. फॉर एग्जाम्पल मैं मंडेज़ वाइट पहनना प्रेफर करती हूँ, वेंसडेज़ फॉर ग्रीन, थर्सडेज़ फॉर येलो, सैटरडेज़ फॉर ब्लैक. ये मैंने कहीं से सुना हुआ है और व्हेन आई फॉलो इट आई फील गुड, बट आई डोंट रियली नो कि ये सही है या नहीं. सो ये जो भी कलर साइंस है, क्या है पहले तो, क्यों है, और क्या सबके लिए सेम है? लाइक इज वियरिंग और keeping whites on Mondays is good for everyone? Please share some light on this. क्या खाने में 7 कलर खाना बॉडी के लिए अच्छा है ना? देयर इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड साइंस अबाउट इट. दे से कि रेनबो कलर्स का खाना आपके खाने में रोज ऐड होना चाहिए. यू हैव टू टेक रेड, यू हैव टू टेक ऑरेंज, यू हैव टू टेक येलो, एंड देन यू हैव टू टेक ब्लूबेरीज एंड स्टफ लाइक दैट, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए भी सारे कलर्स एसेंशियल है. So 7 days represents the 7 way of being, 7 emotions of yourself. So the first day the day starts, or the week starts for you. That is the day which is the color of Som. Som means moon. Moon means the divine nectar. So that is the day which imparts peace. So white. So that you don't get hyperactive. अरे हफ्ता शुरू हो गया, ऑफिस में जाना है, ये करना है, वो करना है. Stay calm. So white is a color of calmness. Now next day, to build up the rapport, to cover up the other thing, Tuesday is the color of action. मंगल यानी कि शुभ काम करने के लिए आप जो रंग पहनते हो, hot pink, reds, मंगल, happy और auspicious colors to be on मंगलवार. Okay. Budh and buddhi, same root. So things that gives sharpness to your brain, which is green leafy vegetables, hence हरी चीज़ें. Mercury as a planet also, both planet Grey, has reflection of green colors. Mars as a planet has reflection of red. Moon we see is white. Thursday Guru. Guru has reflection of yellow. Guru also means life की गुर लेना, learning, insights. So to have insights, हर चीज़ auspicious करने के लिए yellow, tones of yellow. Also some things which works as an antiseptics and antidote in your body. Two basic things that we see in yellow other than fruits is saffron and turmeric. Antibiotic. Saffron is mood stimulator. It stimulates your mood. गुरु का यही काम है, डिप्रेशन में बाहर निकालो और खुश और होपफुल रहने का रास्ता दो. So that's we go with Thursday. Friday is Shukrawar. Shukra represents Venus. Things that make you feel so nice. Things that make you feel grateful. Colorful things. Multicolor, prints, flower, fruits, shimmery stuff. Glory, golden, shimmer. Things that makes you feel abundant. जिसको आप gratitude कर सको. Colors that represent that, or prints that represent that. Again, after doing so much of high and glory, you suddenly want to be subtle, you want to be calm, you want to be disciplined. You have to plan the next week ahead. You have to go जहाँ आप अगले हफ्ते को structure कर सको discipline में. Hence Saturn, slow moving planet, structuring, discipline, analytical. Blue and black colors that don't let outside energy come into you. Blocks the outside energy. So blue and black, dark blue and black that day. Okay. Again, Sunday is the color of sun, new beginning. After you've discussed and analyzed something, kept yourself, अब तो लोग weekend पे party करते हैं. The actual purpose of weekend is to plan the next strategy, not to party. But चलो, जो चल रहा है अच्छा ही है. So to bring everything to light, to start taking action, to plan the next day ahead, to bring energy of sun, which is popularity, fame, visibility. Things that relate to color of sun, orange. Brightness, or coral color, or different shades of sun, crimson, tones of red towards the evening. So tones of sun to impart that energy within you was the whole purpose of that. Okay. कुछ लोगों को कुछ certain colors पहनने से मना किया जाता है कि avoid greens, avoid blues, wear more of whites. कुछ लोगों को whites मना किया जाता है, कुछ लोगों को वाइट्स पहनने के लिए कहा जाता है. उसका क्या रीज़न है? इट्स जस्ट लाइक जेनेरिक. आम आदमी रोटी खा के फर्स्ट क्लास चल रहा है. किसी को ग्लूटेन एनर्जी है, नहीं खा सकता वीट. किसी को लैक्टोस एनर्जी, नहीं पी सकता दूध. बाकी लोग ठीक चल रहे हैं. सो समटाइम्स योर ओन फेजेस, योर ओन प्लैनेट्स आर ऑल्सो नॉट गिविंग ग्रेट रिजल्ट. सो विच से उसकी एनर्जी और मत बढ़ाओ, उसको रोक दो. वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है. अगर एक आपका
आपको पता है कि अगर एक आपका बच्चा एग्रेसिव है, स्ट्रांग है, तो आप उसके कमरों में कैंची चाकू नहीं ना रखोगे कि लेट्स कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल दैट. So similarly, when a planet is aggressively working not the way you want it to work, maybe that's important for you to get a lesson, but चलो अब हमारे मन की नहीं हो रही, तो उसकी एनर्जी और तो मत बढ़ाओ, उसकी बढ़ाओ जिसकी ज़रूरत है या जो वीक है. So that's what we do. Okay, And we okay. tell people कि ये मत पहनो कुछ टाइम. So it depends on their stars कि आपके Each its own. each its own, of course. Right. Indian brides हमेशा से like mostly red color पहनती आई हैं on the day of their wedding. Red color का लहंगा, क्योंकि red color auspicious माना जाता मंगल? है brides के लिए. We just discussed Mangal. मंगल. So when we Okay. say auspiciousness, we consider it red. We Okay. consider a color of blood, a color of new beginning. New beginnings. We also, it's the color that attracts most energy. Yes, yes. Red has the frequency of light जिसको आप immediately देख के attract होते हो, Right. red color को. Yeah, To make the bride attractive, to tell her this is new beginning of life, and she represents as Lakshmi. It's the color that also represents wealth. Yeah. So ये हमेशा से होता है, but now we have seen a shift in this कि now brides prefer wearing ivory and pastel shades. So for example, आलिया ने अपनी wedding पे ivory color का पहना था outfit, then कियारा wore baby pink color. तो उनको देखकर बाकी की जो ब्राइड्स हैं वो भी ये पेस्टल्स और लाइट कलर्स पहनना चाह रही हैं, बट देयर पेरेंट्स समटाइम्स दे डोंट अग्री कि नहीं रेड पहनना है, शादी है तो लाल कलर का लहंगा पहनना है, ब्राइड्स वही पहनती हैं. तो ये इज इट लाइक ओके फॉर देम टू वेयर आइवरी? इट डजंट मैटर, इट मैटर्स व्हाट शुड बी द राइट वे. See, as I say, every decision you make is a reflection of your subconscious mind. What kind of relationship you are inviting. अब तब जब शादी होती थी तो बेचारे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तो पहली बार ही शादी पे मिल रहे हैं, तो लड़की का अट्रैक्टिव लगना बड़ा ज़रूरी था. अब तो 3 साल डेट करते हैं, 500 पिक्चर पोस्ट करते हैं, शादी से पहले 4 फंक्शन कर लेते हैं. सो देर इज़ नो रेलेवेंस कि उस दिन क्या कलर पहना, वो तो पहने ही जा रहे हैं. कभी रेड भी पहन लिया, कभी ब्लैक भी पहन लिया, कभी ब्लू भी पहन लिया. सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स नॉट द वे इट यूज टू बी. इट्स नॉट जस्ट अब शादी का, इंगेजमेंट पे भी उतनी बात है, रिसेप्शन पे भी उतनी बात है, फिर सगन है, फिर मेहंदी है, फिर वो तो सारे ही रंग हो जाते हैं. सो इट्स ओके इफ दे एंजॉय इट, देयर इज नो हार्म इन इट. इट्स ओके. It's a new changing world. Exactly. Thank you for saying that. So, in fact, wearing white on the day of your wedding or even after your wedding is not wrong. They don't wear phika safed. They bring it with silver, with diamond, with gold. So they bring a lot of beautiful glory to it. Exactly, with all decked up, Yeah, makeup so it's done. fine. Yeah. Okay, so wearing white is not a problem. Okay. Nobody wears Amazing. white, they wear ivory. Ivory, yes. Yeah, but Which is a color of Venus, by the way. okay. But even if they want to go for a pure white, even that. Then also they would have to add some sequence to it. कोई धागा डालेंगे, कोई कलर डालेंगे, कोई एम्ब्रॉयडरी डालेंगे. सेम प्लेन सफेद साड़ी पहन के तो शादी पे कोई नहीं ना चला जाएगा. It's always ivory. That was or virag. ornament. Where there's nothing, absolutely nothing, Yeah. like Jain Munis would wear. Nobody would wear like that on a wedding. Right, So people add opulence in their way. Lovely, amazing. Okay, Jay, so last section of this podcast, which is a rapid fire. It's going to be very interesting because I have some really interesting statements. ये कुछ ऐसी statements हैं जो सुन के आपको शायद इनमें से कुछ पे हंसी भी आए. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. कई बार हम चाहते ना चाहते इन पे बिलीव भी करते हैं, बट हमें सच में नहीं पता कि इसमें से कितना सुपरस्टिशियस वाला पार्ट है और कितना पार्ट सच है. वी कैन कीप इट वेरी क्विक. आई मीन आप ये बता सकते हो मिथ या फैक्ट, but if you have something to say on these statements, then it will be even better. Should we start? Yeah. Okay. अगर घर के टैप्स लीक करते हैं तो उसका हेल्थ पर बुरा असर होता है. Wealth पे, more than health. वेल्थ पे असर होता है. Because money is opportunity and water is opportunity as well. So it's a fact. Correct. स्टेयर्स के नीचे का एरिया खाली रखना चाहिए. Stairs signify growth. जो आप नीचे डालोगे वही आपके ग्रोथ का ऑब्स्ट्रक्शन है. So growth has to be clean. Make sense. काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो बैड लक को इंडिकेट करता It है. was a myth, has always been, क्योंकि पहले के टाइम पे जब लोग वॉर पर जाते थे तो इजिप्शियन कैट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट द हाउस. तो जब कोई आदमी क्रॉस करता था लूटने के लिए तो बिल्ली उसके पीछे जाती थी. क्योंकि अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं, तो वो बिल्ली का रिफ्लेक्शन ब्लैक आता था तो काली बिल्ली बोल देते थे. ओके. शीशा टूटना अशुभ माना जाता है.
नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब शीशा टूटता है तो कोई बुरी बला कट गई. दैट्स अ वे ऑफ परसेप्शन. इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ मिथ. इट्स अबाउट कोई टूट गया, नौकर को डांट मारोगे, एम्प्लॉय को गाली दोगे, तो कम से कम चलो यही सोच लो कुछ अच्छा हो गया. कि कुछ अच्छा होने वाला है. ओके. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. So no, 3 is a very auspicious number. Ganga, Jamna, Saraswati, Trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh, even for the deities. So no, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बिल्कुल नहीं. ऐसे इसलिए बोला जाता था कि जब 2 लोगों का रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड मदर इन लॉ इंटरफेयर करे तो क्या होगा. इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई चीज़ 3 बार करिए तो अब चौथी बार भी करो, सो दैट 3 इज एन अनलकी नंबर. इट्स अ मिथ. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. घर या शॉप के बाहर नींबू मिर्ची टांगने से बुरी नज़र हटती है. सो जब खटास, मतलब कि आपकी लाइफ में सामने वाला किसी नेगेटिव थॉट से खटास डाले और उसको आपको देखकर जेलसी हो रही है, इज रिफ्लेक्टिव ऑफ मिर्ची. इसलिए घर में ये 2 पौधे नहीं लगाए जाते, बिकॉज आप घर में खटास नहीं चाहते और आप घर में इंटरनल जेलसी नहीं चाहते. इसलिए उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट बाहर लगा दिया जाता है, दैट व्हेन समबडी कम्स इन वो देखे और सोचे अरे क्यों लगाया है, और उसकी एनर्जी वहीं अटक जाए. जिस तरह से वो हमारे घर को देखता हुआ आ रहा था, वो बैरियर, वो फ्लो टूट जाए. शूटिंग स्टार यानी कि टूटते तारे के सामने जो विश मांगो वो पूरी होती है. देखो, विश तो किसी भी टाइम, द मोमेंट योर फ्रीक्वेंसी गोज अप इन द मैटर ऑफ फेथ, पूरी हो जाती है. भगवान के आगे भी हो जाती है, शांति से बैठकर भी हो जाती है, टूटे तारे को भी देखती हो जाती है. इट्स जस्ट अ वे वे यू सडनली एलिवेट, योर एक्साइटमेंट शूट्स अप एंड विद कंप्लीट ट्रस्ट यू आस्क. दैट्स व्हाट वर्क्स. ये भी एक बहुत कॉमनली देखते हैं हम, होता है, मानते हैं लोग कि अगर आपकी आई ट्विच करती है, ईदर ऑफ द आई, राइट आई या लेफ्ट आई, अगर आँख फड़कती है तो वो गुड लक या बैड लक से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा करते थे, और उस समय लोग इतने सेंसिटिव होते थे कि बॉडी माइंड के साथ रिएक्ट करती थी. अब ऐसा कुछ नहीं है. अब कोई नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हल्की सी नर्व वीक हो सकती है, कुछ चीज़ कॉम्प्रेस्ड हो सकती है, तो उसको वहम में ना लें. दैट वॉज अ समुद्रिक शास्त्र, अ डॉक्यूमेंटेड part in a form of astrology where your organs try to talk to you. But अब तो आपको यही नहीं पता चलता, आपकी टांग है, जब तक टांग में दर्द नहीं होता. You are not connected to your body. So when you are not connected, वो बेचारी सही सिग्नल कैसे देगी. Right. अब तो वैसे इतने सारे सिग्नल्स आते रहते हैं because all thanks to our lifestyle and everything. Correct, So we've stop chosen listening it. to, मतलब relating all these things to, Superstition. this is superstition. The last but the most funny one, I don't know, like funny है या सच में ये सच है, किसी के ऊपर टापने से उनकी हाइट नहीं बढ़ती. नहीं, ऐसा नहीं होता. पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि बच्चे ना ऐसे आम बाहर मैदान में या घर के जो कोर्टयार्ड होते थे, छोटे छोटे, अभी एक बच्चा तो था नहीं, 4 5 7 थे, तो मदर्स को परवाह भी नहीं होती थी, तो ऊपर से टाप जाते थे. कई बार बच्चे के पैर पे पैर आ जाता था, क्योंकि एक से बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, कोई 3 साल बड़ा, कोई 4 साल बड़ा, तो वो बोलते बोलते ऊपर से नहीं टापो, ऊपर से नहीं टापो. तो क्यों नहीं टापो, उसकी हाइट रुक जाएगी. fear के साथ link कर दिया बिकम उसको. चाइनीज रिफ्स. तो होल पर्पस वाज कि उसको चोट नहीं लगे, उसके ऊपर से मत टापो, तुम्हारा पैर गलती से गलत जगह पे ना आ जाए, वो दब ना जाए. So a myth. It started with a logic. Nothing is ever a myth. It starts with a complete reasoning. It later on becomes irrelevant because आज हम उस समय ही नहीं है. अब माँ बाप बच्चे को यूं रखते हैं कॉट में, अपने ही बेड से ऊपर होती है, अब कौन टापेगा. So that's not a possibility anymore. फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि रात को नेल्स नहीं कट करने चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे लाइट नहीं थी, खाने में डल जाते थे. खाने, या यू कैन एक्सीडेंटली, मतलब आप गलत कट कर सकते हो. नेल कटर नहीं होता था. अच्छा, नाइफ से काटते थे, जो भी व्हाटएवर शार्प ऑब्जेक्ट्स दे यूज्ड टू हैव. बट द पॉइंट वाज कि इट्स अनहाइजीनिक. नाउ वी हैव लाइट, इट्स ओके, ठीक से पेपर पे काटो और फेंक दो.